فرعون کی موت اور قرآنی معجزہ، ایک سنسنی خیز داستان۔ یہ کہانی ایک ایسے بادشاہ کی جس نے خود کو خدا کہلوانے کا دعویٰ کیا، مگر قدرت کے سامنے اس کا غرور خاک میں مل گیا۔ 3,500 سال پہلے اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے فرعون ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں آگے سمندر تھا اور پیچھے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس وقت اللہ کے حکم سے سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ بحفاظت گزر گئے، مگر جب فرعون اور اس کے لشکر نے اس راستے سے گزرنے کی کوشش کی تو سمندر دوبارہ آپس میں مل گیا اور وہ سب کے سب ہمیشہ کے لیے سمندر کی گہرائیوں میں غرق ہو گئے۔ مگر قدرت کا معجزہ تو بھی باقی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو سینکڑوں سال تک سمندر میں بہنے کے بعد محفوظ کر لیا۔ یہ لاش صدیوں بعد ایک ایسی جگہ سے ملی جس پر سمندری نمک کی ایک تہہ جمی ہوئی تھی۔ یہ وہ لاش تھی جس کے بارے میں قرآن پاک میں 1400 سال پہلے اعلان کیا گیا تھا کہ اسے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنا کر محفوظ کر لیا جائے گا۔ جب اس لاش کا ایک فرانسیسی سائنسدان ڈاکٹر موریس بکائی نے جدید ٹیکنالوجی سے معائنہ کیا تو اس نے دریافت کیا کہ فرعون کی موت کی اصل وجہ سمندر میں ڈوبنا ہی تھی۔ اس حیران کن سچائی کو جان کر وہ بے اختیار ہو کر پکار اٹھا کہ یہ ایک سچی کتاب ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو آج بھی انسانوں کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ خالق کائنات کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے سامنے تاریخ کا ایک ایسا سنسنی خیز اور سبق آموز واقعہ پیش کروں گا جو ہر انسان کو اللہ کی عظمت اور اس کے وعدوں کی سچائی پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہزاروں سال پرانا ہے مگر اس کا نشان آج بھی دنیا کے سامنے موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ٹکراؤ۔ یہ 3,500 سال پہلے کی بات ہے جب مصر کی زمین پر ایک طاقتور بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام فرعون تھا۔ فرعون کا غرور آسمان کو چھو رہا تھا اور اس نے اپنی رعایا کو یہ یقین دلا رکھا تھا کہ وہی ان سب کا سب سے بڑا رب ہے اور اس کی عبادت کی جانی چاہیے۔ اس کے دور میں بنی اسرائیل ایک کمزور اور بے بس قوم تھی جس سے وہ غلاموں کی طرح سخت محنت کرواتا تھا۔ وہ ان پر ظلم و ستم کی انتہا کرتا اور ان کے بچوں کو ذبح کروا دیتا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں پہنچ کر اسے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی اور حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ جانے دے تاکہ وہ آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکیں، مگر فرعون جو خود کو خدا کہتا تھا اس کے لیے یہ بات ناقابل قبول تھی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور انہیں جھوٹا قرار دے دیا۔ اللہ نے فرعون کو راہ راست پر لانے کے لیے اس پر مختلف عذاب بھیجے جن میں خشک سالی، ٹڈی دل، مینڈک اور خون کی بارش شامل تھی۔ ان عذابوں سے پریشان ہو کر فرعون نے کہا کہ وعدہ کرتا ہوں اگر یہ عذاب ختم ہو جائیں تو وہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے گا، مگر جب عذاب ٹل جاتا تو وہ پھر سے اپنی سرکشی اور تکبر پر لوٹ آتا۔ آخر کار اللہ نے فرعون کی سرکشی اور تکبر کی حد دیکھ لی تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ رات کی تاریکی میں بنی اسرائیل کے ساتھ مصر چھوڑ کر چلے جائیں۔ جب فرعون کو اس بات کا علم ہوا تو اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے فوراً اپنا سب سے بڑا اور طاقتور لشکر تیار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ فرعون کا ارادہ تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو ختم کر دے اور ان کی نسل کا نام و نشان مٹا دے۔ سمندر کا پھٹنا اور فرعون کا ڈوبنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا یہ قافلہ بھاگتے ہوئے ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں آگے وسیع اور گہرا سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا طاقتور اور بے رحم لشکر تیزی سے آ رہا تھا۔ بنی اسرائیل کی نظر جب پیچھے آتی ہوئی فوج پر پڑی تو وہ خوفزدہ ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اب تو ہم ختم ہو گئے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کمال یقین اور اطمینان کے ساتھ فرمایا کہ ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ ضرور ہمیں راستہ دکھائے گا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی اور حکم دیا کہ وہ اپنی عصا یعنی لاٹھی مبارک کو سمندر پر ماریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ایسا ہی کیا اور ایک حیرت انگیز معجزہ رونما ہوا۔ سمندر کا پانی دیکھتے ہی دیکھتے 2 بڑے حصوں میں بٹ کر ایک دیوار کی شکل میں کھڑا ہو گیا اور درمیان میں ایک خشک سیدھا اور چوڑا راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اسی راستے سے اپنے مال و اسباب سمیت سمندر پار کرنے لگے۔ وہ سب کے سب بخیر دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ ادھر جب فرعون اور اس کے لشکر نے دیکھا کہ بنی اسرائیل ایک خشک راستے سے سمندر پار کر رہے ہیں تو اس کا تکبر بھی اود کر آیا۔ اس نے یہ سوچا کہ یہ اللہ کا معجزہ ہے بلکہ اسے اپنی طاقت کا مظاہرہ سمجھا۔ فرعون نے غرور سے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ وہ بھی اس راستے پر بنی اسرائیل کا پیچھا کریں۔ فرعون اور اس کی پوری فوج اس راستے پر چلنے لگی۔ جب وہ سب درمیان میں پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو دوبارہ مل جانے کا حکم دیا اور سمندر کی دونوں دیواریں دھڑام سے واپس اپنی جگہ پر آ گئیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے فرعون، اس کا غرور، اس کا تخت اور اس کا پورا لشکر سمندر کی لہروں میں ڈوب کر ختم ہو گیا۔ اس طرح خود کو خدا کہنے والے کی زندگی کا بھیانک انجام ہوا۔ فرعون کی لاش کا محفوظ ہونا۔ ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے فرعون کی لاش کو باہر پھینک دیا جبکہ اس کے باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اس کی زندگی کے سب سے بڑے دعوے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں کی سزا دی۔ فرعون کی لاش کو صدیوں بعد بھی باقی رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کی ہتک آمیز موت کا نشان ہمیشہ باقی رہے۔ اس وقت مصر میں فرعون کی لاش کو محفوظ کرنے کا رواج تھا جس کے لیے وہ لاش پر مخصوص مسالے لگا کر اسے پٹیوں میں لپیٹ کر تابوت میں رکھ دیتے تھے۔ یہ ہنر صرف اسی قوم کے پاس تھا۔
फिरौन की लाश जब समंदर के किनारे मिली तो मिस्रियों ने उसे पहचान लिया और उसे उसके महल में पहुंचाया। दरबार में मौजूद लोग उस पर मसाले लगाकर उसे पूरी इज्जत के साथ महफूज करने लगे, मगर इस अमल के दौरान उनसे एक गलती हो गई, जिसकी वजह से फिरौन की लाश में एक मखसूस निशान बाकी रह गया। क्योंकि फिरौन समंदर में डूबकर मरा था और मरने के बाद कुछ अरसे तक पानी में रहा था, इसलिए उसके जिस्म पर समंदरी नमक और समंदरी जर्रात की एक मोटी तह जम चुकी थी। मिस्रियों ने यह सोच कर के लाश का हिस्सा है उसे हटाया नहीं और उसी हालत में उसे महफूज कर दिया। वक्त गुजरता गया, हजारों साल की तारीख गुजर गई। फिरौन का नाम और उसकी शान और शौकत सिर्फ किताबों और इमारतों में रह गई। उसकी लाशें और उसके मकबरे जमीन की तहों के अंदर छुप गए। इस वाक़े के तकरीबन 2000 साल बाद दुनिया में अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। उन पर अल्लाह की आखिरी किताब कुरान पाक नाजिल हुई, जिसमें इंसानों की इबरत के लिए फिरौन के किस्से बड़ी तफसील के साथ बयान किए गए हैं। इसी सिलसिले में फिरौन के जिस्म को महफूज करने के बारे में एक आयत नाजिल हुई, जिसके अंदर अल्लाह ताला साफ तौर पर फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है सूरह यूनुस आयत 19 और तर्जुमा है, आज हम तेरे बदन को बचा लेंगे ताकि तू अपने बाद वालों के लिए एक निशानी हो जाए, और बेशक बहुत से लोग हमारी निशानियों से गाफिल हैं। इस आयत मुबारक की सच्चाई पर तमाम मुसलमानों को यकीन तो था, लेकिन वो ये समझने से कासिर थे कि खुद को खुदा कहने वाले की लाश आखिर कहाँ महफूज की गई होगी, उसे कैसे इबरत का निशान बनाया जाएगा, कौन उसकी तस्दीक करेगा। ये एक बहुत ही नाजुक मामला था, क्योंकि कुरान पाक में बयान किए गए अल्लाह ताला के तमाम अल्फाज में से अगर सिर्फ एक आयत भी गलत साबित हो जाती तो मुसलमान गैर मुस्लिमों के सामने बाकी कुरान को कैसे सच्चा साबित करते। मगर ये अल्लाह का कलाम है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं, इसलिए हर दौर में उसने अपनी सच्चाई को साबित किया है। फिरौन की लाश की दरियात और जदीद साइंस का मौजज़ा। 1873 में मिस्र के एक छोटे और गरीब गांव से ताल्लुक रखने वाले एक मामूली चोर अहमद अब्दुल रसूल को इत्तफाक से कदीम फराइन के मकबरों तक पहुंचने का एक खुफिया रास्ता मिल गया। उसका मकसद सिर्फ मकबरों में से कीमती नवादरात जैसे सोना, चांदी, हीरे, मोती वगैरह चुराना था। वो तपती हुई धूप में एक खुफिया रास्ते का पता चलने पर जगह खोदने लगा। उस दौरान उसे बाकी चोर समझकर कुछ लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में वो जिस जगह को खोद रहा था वहां से मिलने वाले रास्तों की मुसलसल खुदाई की गई तो 1898 में दूसरी ममियों यानी महफूज शुदा लाशों के साथ साथ उस फिरौन की लाश भी मिल गई जो समंदर में डूब कर मरा था। उसके कफन पर सीने की जगह पर उसका नाम भी लिखा हुआ था। उन ममियों को माहिरीन अपने साथ काहिरा ले गए, जहाँ पर जब उनका तफसील से जायजा लिया गया तो फिरौन की लाश पर जमी हुई नमक की तह से इस बात की तस्दीक हो गई कि ये वही फिरौन है जिसे पानी में गर्क करके इबरत का निशान बनाने का वादा किया गया था। उस दरियाफ्त से पूरी दुनिया में हलचल मच गई। उसकी तस्दीक के लिए दुनिया भर से माहिरीन, मौरखीन और साइंसदान मिस्र की तरफ मुतवज्जे हुए। जब साइंसी टेस्ट किए गए तो दुनिया भर के साइंसदानों ने ये तस्दीक कर दी कि बाकी तमाम लाशों के मुकाबले में सिर्फ उस एक फिरौन की लाश पर समंदरी नमक और समंदरी जर्रात की तह जमी हुई थी, जिसने उसे खराब होने से बचाए रखा। इस सच्चाई के सामने आने के बाद उसे आखिरकार फिरौन की लाश करार देकर अजायब घर यानी म्यूजियम में महफूज कर दिया गया। डॉक्टर मॉरिस बकाई का सफर ईमान। ये लाश 1922 में दरियाफ्त हुई थी। 1970 की दहाई में जब ये मम्मी खराब होने लगी तो मिस्री हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत से दरखास्त की कि इसे खराब होने से बचाया जाए और जदीद साइंसी आलात की मदद से इसकी मौत की असल वजह भी मालूम की जाए। चुनाचे मिस्री और फ्रांसीसी हुकूमतों ने मिलकर उस मम्मी को फ्रांस ले जाने का इंतजाम किया। जब फिरौन की लाश को फ्रांस पहुंचाया गया तो एयरपोर्ट पर उस वक्त के फ्रांसीसी सदर खुद हुकूमत के तमाम आला ओहदेदारों, वज़रा और फौजी अफसरान के साथ उसके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। यहाँ फिरौन की लाश का इस्तकबाल किसी अजीम बादशाह की तरह किया गया। फौजी दस्तों ने उसे सलामी दी और उसकी मम्मी को माहिर डॉक्टरों की एक टीम के हवाले कर दिया गया। उस टीम के सरबराह डॉक्टर मॉरिस बकाई थे, जो उस वक्त के सबसे बड़े सर्जन और माहिरीन में से एक माने जाते थे। जब माइक्रोस्कोपिक टेस्टों के जरिए मम्मी के तमाम हिस्सों का बारीक बीनी से जायजा लिया गया तो डॉक्टर मॉरिस को मालूम हुआ कि उसकी लाश के अंदर समंदरी ज़रात अभी तक मौजूद हैं। इससे ये बात साबित हो गई कि उसकी मौत समंदर में डूबने की वजह से हुई थी, क्योंकि समंदरी पानी के अंदर ही इस तरह की नमकियात और ज़रात पाए जाते हैं। मगर एक बादशाह की मौत पानी में डूबने की वजह से हो, ये सोचना अपने आप में एक बहुत ही हैरानकुन सवाल था, क्योंकि ऐसे अजीम बादशाह अपनी शान और शौकत के साथ दफन किए जाते हैं। डॉक्टर मॉरिस के लिए भी ये बात हैरत की थी और इसी तजस्सुस में उसने उस मम्मी के बारे में मजीद जानने की कोशिश की तो उसे मालूम हुआ कि उस बादशाह की मौत के हालात मुसलमानों के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई किताब कुरान पाक के अंदर 1400 साल पहले तफसील से बयान किए गए हैं। उसे मालूम था कि जहां से ये लाश मिली है वो एक इस्लामी मुल्क है। चुनाचे तजस्सुस में मजबूर होकर वो मिस्र पहुंचा और उसने एक मुस्लिम आलिम से मुलाकात की, जिसने उसे कुरान पाक खोलकर सूरह यूनुस की आयत 92 का तर्जुमा लफ्ज ब लफ्ज सुनाया, जिसमें फिरौन के दावा खुदाई और उसके पानी में डूबकर मरने और फिर पानी से निकाल कर उसकी लाश को महफूज करने का वादा अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर किया हुआ था। उन कुरानी आयत का इशारा बिल्कुल वाज़ेह था और सिर्फ एक ही नतीजा निकलता था कि मैं तुझे मरने के बाद आने वालों के लिए महफूज करके इबरत का निशान बना दूंगा। डॉक्टर मॉरिस ने जब ये सब कुछ जाना तो वो बेख्तियार चिल्ला उठा कि ये बिल्कुल सच्ची किताब है और इसका एक एक लफ्ज अल्लाह का है। उसी वक्त उसने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया।
फिरौन, तूतनखामुन और साइंस का एक और मौजज़ा। एक और वाक़या जिसने साइंसदानों को हैरत में डाल दिया वो फिरौन का तूतनखामुन की दरियाफ्त से मुताल्लिक है। कदीम मिस्र में फिरौन तूतनखामुन को उमूमन एक मजबूत जिस्म और बड़े जलाल वाले बादशाह के तौर पर पेश किया जाता था, लेकिन एक हालिया साइंसी तहकीक के बाद उसकी हकीकत दुनिया के सामने आ गई। माहिरीन आसार कदीमा, तारीखदानों और मेडिकल साइंस के माहिरीन ने मिलकर मिस्र के शहर लोक्सर में फिरौन के मकबरों के शहर में मौजूद तूतनखामुन के ढांचे और बाकियात पर जब जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से तहकीक की और सुपर कंप्यूटर की मदद से उसके जिस्म की साख की तस्वीर तैयार की तो मालूम हुआ कि फिरौन एक बहुत ही नाजुक जिस्म का मालिक था। बायां पैर खराब था और कमजोरी की वजह से वो छड़ी के सहारे चलता था। उसके वालिदैन के डीएनए के नमूनों से ये भी मालूम हुआ उसके वालिदैन आपस में बहन भाई थे, और माहिरीन का कहना है कि उस फिरौन के जिस्मानी नुकाइस और कमजोरियों की वजह भी यही थी कि उसके वालिदैन का आपस में बहन भाई का रिश्ता था। उस फिरौन के साथ एक ऐसे खंजर को भी दफन किया गया था जिस पर जदीद तहकीक के मुताबिक ये किसी जमीनी लोहे से नहीं बल्कि किसी शहाब साकिब या स्टेरॉइड से हासिल होने वाले लोहे से तैयार किया गया था। यह वही खंजर था जिसे 1925 में बरतानवी माहिर आसार कदीमा हॉवर्ड कार्टर ने दरियाफ्त किया था। साइंसदानों को एक और बात ने चकरा कर रख दिया कि इस लोहे को जंग नहीं लगता था, और इस तरह के लोहे का मिस्र में पाया जाना बहुत ही हैरत की बात थी। मैट्रिक्स एंड प्लेनेटरी साइंस नामी मैगजीन में छपने वाली रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र और इटली के मुहक्किकीन ने उस खंजर के लोहे की बनावट की तस्दीक करने के लिए एक्सरे फ्लोरोसेंस की तकनीक इस्तेमाल की और उसकी उम्र का तयन किया। उनका कहना है कि इसका मवाजना उस स्टेरॉइड से किया जा सकता है जो कि मिस्री साहिल पर 2000 किलोमीटर के दायरे में कभी गिरा था। अगर आप हालिया तहकीक की गहराई से छानबीन करें तो आप ये जान पाएंगे कि कदीम मिस्री फिरौन और कारीगर ये जानते थे कि लोहे के टुकड़े आसमान से गिरे हैं, जबकि ये बात मगरिब को 2000 साल बाद यानी आज से तकरीबन 1300 साल पहले काफी साइंसी तहकीक के बाद मालूम हुई। मगर मुसलमानों को इससे भी 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक के अंदर वाज़े तौर पर बयान कर दिया था कि लोहे जैसी धात जमीन पर पैदा नहीं होती बल्कि ये आसमान से नाजिल हुई है। यह कुरान का एक और साइंसी मौजज़ा है जो इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। इबरत का निशान और आखिरी पैगाम। फिरौन की लाश को इबरत के लिए ऐसे महफूज करके दुनिया के सामने रख दिया गया कि आज इंटरनेट के एक क्लिक पर अखबारों, टीवी चैनल्स पर और म्यूजियम में ये हम इंसानों की आंख के सामने हर वक्त एक वाज़ेह सबूत के तौर पर मौजूद है। फिरौन का अंजाम हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि इबरत के लिए, सोचने के लिए और दायमी रहने वाली सिर्फ एक ही हस्ती है जो कि सबका खालिक और मालिक है और सबका रिस्क देने वाला है। अगर दुनिया के इंसानों में वाकई कोई खुदा मौजूद है तो वो अपनी कौम को तबाह होने से पहले खुद को अल्लाह ताला के अजाब से बचा कर दिखा दे। अल्लाह ताला हमें सच को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दुआ। ऐ अल्लाह, हम सब तेरे बंदे हैं, तेरे ही दर के सवाली हैं, तेरे ही रहम के तलबगार हैं और तेरे ही सामने झुकने वाले हैं। तू गफूर है, रहीम है, करीम है, तू बख्शने वाला है, दरगुजर करने वाला है। तू सब जानता है, हम कुछ नहीं जानते। तू सब कुछ कर सकता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। या अल्लाह, हमें इस हाल में ना छोड़ कि हम अपने नफ्स के हवाले कर दिए जाएं। हमें हमारे गुनाहों की वजह से तबाह ना कर, हमारी लग्जिशों को दरगुजर फरमा, हमारी कोताहियों को मुआफ फरमा, हमारे दिलों को हिदायत दे, हमारी जबानों को सच्चाई पर कायम रख और हमारे आमाल को अपने लिए खालिस बना दे। या रब्बुल आलमीन, हम कमजोर हैं, हम भूलने वाले हैं, हम बार बार गुनाह करने वाले हैं, मगर तू हर बार मुआफ करने वाला है। हमने दुनिया की मोहब्बत में तेरी याद को भुला दिया, मगर ऐ रब, तू हमें मत भूला। हमें अपने जिक्र से जिंदा रख, अपनी इबादत में लगा दे और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाला बना दे। या अरहमुर राहिमीन, हमें वो आंखें अता फरमा जो तेरे खौफ से अश्कबार हों, वो दिल अता फरमा जो तेरी अजमत से कांप उठे, वो जबान अता फरमा जो हर वक्त तेरा जिक्र करे और वो जिंदगी अता फरमा जो तेरी रजा में गुजरे। ऐ मालिक यौमिद्दीन, जब हमारे जनाजे उठें तो हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनके लिए फरिश्ते दुआएं करते हों। जब हमें लहद में उतारा जाए तो हमारी तन्हाई को अपनी रहमत से आबाद फरमा। जब हिसाब का वक्त हो तो हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत फरमा और हमें उनके हौज़े कौसर से पानी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे माँ बाप को बख्श दे, उनकी कब्र को नूर से भर दे, जिन्होंने हमें पाला, सिखाया, हर तकलीफ बर्दाश्त की। उनकी कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और हमें उनके लिए सदका जारिया बना दे। और अगर वो जिंदा हैं तो उनकी उम्रों में बरकत अता फरमा, उनकी सेहत की हिफाजत फरमा, उनकी दुआएं हमारे लिए कबूल फरमा। या रब, जिनकी औलाद है उनके बच्चों को नेक, साले और फर्माबरदार बना। जिनकी औलाद नहीं उनको नेक औलाद अता फरमा। जिनके रिस्क में तंगी है उनको वुसअत अता फरमा। जिन पर कर्ज है उनको हलाल रिस्क से अदायगी की तौफीक अता फरमा। जिनके दिल जख्मी हैं उन्हें तसल्ली अता फरमा। जिनके घर उजड़ चुके हैं
उनको सुकून अता फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा। जो बे औलाद हैं उन्हें खुशी दे दे। या अल्लाह, हम तुझसे मांगते हैं ईमान की हलावत, दिलों की पाकीज़गी, नफ्स की तहारत, जबान की सदाकत, अमल की इखलास और आखिरत की कामयाबी। हमें दुनिया की आजमाइशों से बचा, आखिरत के अजाब से महफूज फरमा और सिरात पर साबित कदमी अता फरमा। या अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिन्हें तू जन्नत की बशारत देता है, जिनके लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिन्हें सलाम किया जाता है, जिनके चेहरे रोशन होते हैं, जिनके दिल मुतमईन होते हैं, जिन पर तेरा फजल होता है और जिन्हें तू अपना कुर्ब अता फरमाता है। या रब, हमें पुलिस सिरात पर नूर अता फरमा, हमारे कदमों को साबित रख, हमारे गुनाहों को हमारे चेहरों पर ना लाना, हमारे ऐबों को ढांप लेना और हमें रुसवाई से बचा लेना। ऐ मालिक, जब तू जन्नत की कुंजी अता करे तो हमें पीछे से ना छोड़ना। जब तू अपने नेक बंदों को बुलाए तो हमें महरूम ना रखना। जब तू अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद दे तो हमें उनके करीब रखना। जब तू जन्नत की हवा चला दे तो हमें भी उनमें शामिल कर लेना। जब तू जन्नत के दरवाजे खोले तो हमें भी दाखिला अता फरमा देना। या अल्लाह, हमें दुनिया में भी सुकून अता फरमा और आखिरत में भी कामयाबी दे। हमें इस उम्मत के लिए नफा बख्श बना दे। हमारे कलम, जबान और वसाइल को तेरे दीन की खिदमत में लगा दे। हमें गुमराही से बचा और हक के रास्ते पर कायम रख। हमारे अमाल को कबूल फरमा और हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिन्हें तू अपना महबूब कहे। या अल्लाह, हमारे दिलों को हर किस्म के कीने, हसद, बुग़्ज़, नफरत और दुश्मनी जैसे जहरीले जज्बात से मुकम्मल तौर पर पाक फरमा दे। उन अंधेरी कैफियतों को हमारे दिलों से ऐसे मिटा दे जिसे रोशनी अंधेरे को खत्म कर देती है। हमारे सीनों को फराख दे, हमारी तबीयतों को नर्म और हमारे रवैयों को दरगुजर पर माइल फरमा। ऐ रब्बे करीम, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनके दिल मोहब्बत से लबरेज होते हैं, जिनकी ज़बानें दूसरों के लिए खैर कहती हैं, जिनके अमल अमन, रहम और शफकत का पैगाम होते हैं। हमें ऐसा इंसान बना दे जो दूसरों को मुआफ करने वाला हो, जो रिश्ते जोड़ने वाला हो, जो दूसरों की गलतियों पर पर्दे डालने वाला हो, जो हर हाल में नरमी इख्तियार करने वाला हो। ऐ परवरदिगार, हमें ऐसा दिल अता फरमा जो तकब्बुर से पाक हो, जो हसद से दूर हो, जो न किसी का बुरा चाहे, न किसी की खुशी से जलने लगे, न किसी की कामयाबी से परेशान हो। हमें ऐसा ज़र्फ़ अता कर दे जो दूसरों के लिए दुआ करे, हत्ता कि उनके लिए भी जिन्होंने हमें दुख दिया हो। और हमें ऐसे दिल दे दे जो तेरे बंदों से बुग़्ज़ ना रखें बल्कि उनके लिए खैर का ज़रिया बने। या अल्लाह, हमारे घरों में मोहब्बत, उल्फत, इत्तेहाद और सुकून नाजिल फरमा। हमारे ख़ानदान को बाहिमी एहतराम, एतमाद और खुलूस की डोर से बांध दे। हमारे दरमियान नफरत, जिद, अनायत और बदगुमानी की दीवारें गिरा दे। माँ बाप और औलाद के दरमियान मोहब्बत गहरी कर। मियाँ बीवी के दरमियान मुअद्दत पैदा कर। बहन भाइयों के दिलों में इत्तफाक और कुर्बानी का जज्बा पैदा कर। आमीन या रब्बुल आलमीन। हमें वो घर अता फरमा जिनके दरो दीवार जिक्र से गूंजते हों, जिनमें तुझ पर तवक्कल किया जाता हो, जिन पर फरिश्ते रहमत लेकर उतरते हों। या अल्लाह, हमारे नफ्स की शरारतों को काबू में रख। हमें ख्वाहिशात का गुलाम बनने से बचा। हमें अपनी ख्वाहिशात के बजाय तेरे अहकामात का ताबे बना। हमें सब्र अता फरमा, कनात अता फरमा, शुक्र का जज्बा अता फरमा और नफ्स की हर गलत तलब से महफूज फरमा। हमें दुनिया की चमक दमक, फरेब और धोखाधड़ी से निजात अता फरमा कि ये सब आर्जी हैं और असल कामयाबी तेरी रजा में है। यार, अब इस वीडियो को, इस पैगाम को, इस मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जिन्होंने इसे सुना उनके दिलों पर असर फरमा, उन्हें नेकी की तरफ माइल फरमा और बुराइयों से दूर रख। इस वीडियो के जरिए हिदायत का जरिया बना, मगफिरत का जरिया बना, बख्शिश का जरिया बना। या अल्लाह, जो भाई बहन हमारी इस काविश में शामिल हैं उन सब के दर्जात बुलंद फरमा। उनके रिस्क, सेहत, इल्म और आमाल में बरकत अता फरमा। उन्हें और उनके अहले खाना को अपनी हिफाजत में रख। उनकी दुआएं कबूल फरमा, उनके रास्ते आसान फरमा। उनके लिए दुनिया और आखिरत की भलाइयां लिख दे। या अरहमुर राहिमीन, हमें मौत की हकीकत याद दिला। या अरहमुर राहिमीन, हमें मौत की हकीकत याद दिला। हमें दुनिया की फानी खुशियों से निकल कर तेरी रजा की तलब अता फरमा। हमें क़नात, सब्र, शुक्र और तवक्कल का रास्ता दिखा। हमें अपनी मोहब्बत अता फरमा और अपनी मार्फत से सरफराज फरमा। ए अल्लाह, जब कब्र में अकेले हों तो तू हमारा साथी हो, जब अंधेरे हों तो तू रोशनी अता फरमा, जब आमाल का पलड़ा तोला जाए तो तू हमारे नेक आमाल को भारी कर दे, जब किताबें दी जाएं तो हमें दाएं हाथ में देना, जब नामाए आमाल खुले तो हमें शर्मिंदा ना करना। या अल्लाह, हम सब की तौबा कबूल फरमा, हमें हिदायत दे,
ثابت قدمی دے اور ہماری زندگی کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں کو سیدھا کر دے، ہمارے راستوں کو درست کر دے، ہماری نیتوں کو پاک کر دے اور ہمیں صرف اور صرف تیرے لیے جینے اور مرنے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین یا رب العالمین۔